Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. In today's lecture, we will be discussing about trigonometric functions, class 11th, chapter number 3, mathematics. Yes, so I have promised you that we'll discuss questions on trigonometric functions and also thermodynamics. Thermodynamics I will take 2 or 3 days after this lecture. Yes, so let's start with trigonometric functions and let's do some very important and very crucial questions for examinations that may come in your half yearly or final exams. Yes, so let's take the first question of today's discussion, and that is from your NCRT. So the question says, prove that, and it is a very important question, very important question. And if you know this question, if you know this question, I will suggest you should solve this question once again. Once, please, this is a request from my side, please solve this question once again. If you know, if you don't know, no matter, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, you have to solve that. So prove that मेजर जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रूविंग के ही होंगे, ठीक है. So prove that tan 4x is equals to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan raised to the power 4x. Why I am saying that if you know this, you have to solve this again, because by this you realize that, or you are in contact with trigonometry. Yes, contact with trigonometry is very important. Once you left it, you forgot the formula, you forgot the steps. Yes, proving questions के लिए यही होता है. You have to practice and practice frequently. Minimum 2 or 3 weeks में you have to do 10 to 15 questions of trigonometry. Yes, no matter new, no matter कुछ न्यू क्वेश्चंस तो करने चाहिए वैसे भी, बट पुराने क्वेश्चंस को भी करना चाहिए, ठीक है. खासकर जो आपके एक्सरसाइज के ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट पेज में दे रखे हैं 22 से लेकर 25 तक. आई एम नॉट सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस, ओनली दिस क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग. यस, सो tan 4x can be written as tan 2 times 2x. Yes, tan 2 times 2x. Why I am writing? Because to get tan 2x formula, you all know the formula for tan 2x. Yes, tan 2x क्या होता है? tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. ठीक है, 2 tan x upon 1 minus tan square x. So I am using this formula here. ठीक है, so tan 2x, this will रोल एज x. ठीक है, ये एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा यहाँ पे. tan 2 थीटा, tan 2 x. ठीक है, सो tan 2x इक्वल्स टू बेसिकली 2 tan x, 2 tan, and this x means this. So this 2 tan 2x upon 2 tan 2x upon 1 minus tan square this 2x. I hope you got that. Yes, so now again this becomes tan 2x, this becomes tan 2x का whole square. So we will open it again. Yes, so 2 को बाहर ले लेते हैं हम, ठीक है. tan 2x upon 1 minus tan 2x whole square. Yes, now open it. 2 tan x upon 1 minus tan square x upon, now this 1 minus tan 2x whole square. This means 2 tan x upon 1 minus tan square x whole square. I hope you understand this. What I have did is that tan 2x, first of all I open tan 2x like this, 2 tan x upon 1 minus tan square x.
divided by 1 minus tan 2x whole square. So tan 2x is 2 tan x upon 1 minus tan square x. Now square it. Okay? So whole square. I hope you understand it. And the two which get derived from this formula, I have taken it out from the bracket. Yes. Now simplifying it further, we will get 2 times, और चलो अभी 2 टाइम्स ही आने देते हैं. 2 टाइम्स अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर लेके जाएंगे इसको. ठीक है. 2 टाइम्स 2 tan x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन क्या हो जाएगा ये 4 tan स्क्वायर x, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर है. ठीक है. सो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. ठीक है. ठीक है. यहाँ तक ठीक है. चलो अब इसको और अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं. 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, नाउ टेकिंग द एलसीएम, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर. Please don't scared with the number of terms. This is very simple. Solve it step by step, taking very small steps. ठीक है. बहुत छोटे छोटे स्टेप भी अगर लेने पड़े ले लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बिकॉज इट हैज़ नंबर ऑफ एक्सप्रेशंस. यस, बहुत सारी एक्सप्रेशंस, और वो भी सारी डिवीजन में हो रही है. मल्टीप्लिकेशन में होती फिर भी आसान होता है. डिवीजन में हमें फिर रेसिप्रोकल करना पड़ता है, कभी काटना पड़ता है. सो दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो टेक इट वेरी प्रिसाइज. ठीक है. बहुत प्रिसाइज तरीके से अब इसको करना है. ठीक है. सो 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये कि 1 माइनस टैन एक्स. सो कट जाएगा ये, यहाँ से एक पावर कटेगी और यहाँ से पूरा कट जाएगा. ठीक है. नाउ अभी जगह ख़त्म हो गई है, 1 सेकेंड. सो ये जो स्टेप लास्ट स्टेप यहाँ पे आया था हमारा, इसको मैंने यहाँ दोबारा से लिख दिया. ठीक है. दोबारा से नहीं, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा है. ठीक है. सो हेयर we are left with 2 into 2 tan x upon 1 minus tan square x divided by 1 minus tan square x whole square minus 4 tan square x again divided by 1 minus tan square x whole square. तो यहाँ से एक पावर कटी और यहाँ से पूरी एक्सप्रेशन कट गई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स वाली. अब देखो 2 tan x सेम है, यहाँ 1 आ गया था तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गया. ठीक है. इसको ऊपर ले गया मैं. सो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स. आई होप यू गॉट दैट कि हमें कैसे मिला. अब देखो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं. ठीक है. ये वाली ब्रैकेट को खोल देते हैं और अंदर सॉल्व कर देते हैं. कैसे करेंगे जरा देखिएगा. ठीक है. और ये जो टर्म होगी ये ऊपर भी चली जाएगी, तो हम उसको ऊपर भेज देते हैं. पहले ऊपर भेज देते हैं. चलो 4 tan, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 tan x इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स. ठीक है. ये ऊपर चलेगी 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा 4 टैन एक्स 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स. अब नीचे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर टैन रेज़ टू पावर 4x 2 जो 4x माइनस 2 ए बी माइनस 4 टैन स्क्वायर एक्स. सो ये बन गया आपका 4 टैन एक्स 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, ये और ये सिमिलर टर्म्स है. ठीक है. लाइक टर्म्स है, तो ये बन जाएगा आपका क्या 1 प्लस टैन रेज़ टू द पावर 4x माइनस टैन रेज़ टू द पावर 2x और ये 6. ठीक है. ठीक है. 6 क्योंकि 2 और 4 6 हो जाएगा, वो दोनों लाइक टर्म्स हैं, माइनस में है. सो ये ऐसा हो जाएगा. आपको प्रूफ ये करना था,
है ना, 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स होगा 4x। बस करना नहीं है कुछ, इसको यहाँ भेज देते हैं। 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 raised to our 4x and this is the RHS hence proof। ठीक है, hence proof, क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ये आपका जो है सॉल्यूशन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। दो स्टेप्स छोड़ने नहीं है आपको कि हमें तो आता है कि डिवाइड वाला तो है तो कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाता है बहुत बारी ऐसा होगा कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बिल्कुल इस क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम से कम पेपर से पहले कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम करेंगे, अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन केम इनटू माय एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, अभी जो थोड़े दिन पहले हुआ है, सो उसको सॉल्व करते हैं। और ये MCQ में आया था, यू डोंट बिलीव दैट, यू विल नॉट बिलीव दैट, बट ये MCQ में आया था ऐसा क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन MCQ में आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई हमारे स्कूल ने हमारे ऊपर जो कह सकते हैं कोई टेररिज्म नहीं करा है। ठीक है, सो हम कहते हैं cos 17 प्लस sin 17 अपॉन cos 17 माइनस sin 17 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालें। और ये पहली बारी में सिर्फ जिनका IQ आइंस्टाइन जितना है ना उसी से सॉल्व होगा। ये पहली बार में आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, गारंटी है। ठीक है, अगर आप पहली बार ऐसे क्वेश्चन देख, पहली बार मतलब पहली बार देख रहे हो कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, या आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आपसे सॉल्व डेफिनेटली है कि आप लास्ट स्टेप में जाके अटक जाओगे। लास्ट पहले आप सब कर लोगे, हाँ cos से डिवाइड कर देते हैं हम, कुछ तो कर देंगे, tan में आके आप फंस जाओगे। कैसे उसमें डील करना है ज़रा समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सो आंसर करते हैं हम इसका। देखो पहले मैं ऐसे करके देखता हूँ। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसी का आंसर बताएंगे हम। उसके बाद मैं एक जनरलाइज फॉर्म भी आपको बताऊंगा कि आप ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये MCQ में आया है। ठीक है, सो इसके मैं पहले ऑप्शंस दे देता हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्राई करना चाह रहे हो। सो ऑप्शंस अगर मैं आपको दूँ, सो A है tan 62, B है tan 17, C है cos 32 और D है आपका sin 64। ठीक है, ठीक है, सही है। ट्राई कर लीजिए इसको, ट्राई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर इसका tan 62 है। कैसे करेंगे बताता हूँ। ठीक है, चल cos 17 प्लस साइन 17 cos 17 माइनस साइन 17। पहला स्टेप आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि cos से डिवाइड कर देते हैं कुछ तो बन जाएगा। ये तो हमने 10th क्लास से सीखा हुआ है, ऐसी कोई टर्म दिखे तो cos से डिवाइड कर देना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 17। सो व्हेन वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय cos 17, what we will get is cos 17 upon cos 17 1, sin 17 upon cos 17 tan 17, very good, cos 17 upon cos 17 1 minus tan 17। यहाँ आके हम अटक जाएंगे, ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद कुछ नहीं। यहाँ आके हम अटक जाएंगे। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़े ये समझना बड़ा ही दिलचस्प है। चलो समझते हैं। देखो हम सबको पता है tan x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सो इसका अब हम यहाँ पे बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत बढ़िया, उम्दा, बिल्कुल उम्दा। ठीक है, अब देख 1 क्या होता है tan की दुनिया में, 1 क्या होता है tan की दुनिया में, इन टैन्स वर्ल्ड
1 is written as tan 45 degree. So we can write tan 45 degree plus tan 17 degree upon, अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे 1 की जगह फिर से tan 45 लिख देंगे, नहीं, अब हमें इसको 1 की जगह में tan 45 नहीं लिखना है, इस वाले में लिखना है, कहीं और लिखना है, कहाँ लिखना है बताता हूँ। देखो इस पे देखो, इस पे नज़र डालो, अगर इसको ध्यान से देखो, हम यहाँ ये ऊपर वाली चीज़ कर चुके हैं, नीचे वाली चीज़ करनी है, इसको और इसको कंपेयर करो, कंपेयर दिस डिनोमिनेटर एंड कंपेयर दिस डिनोमिनेटर, 1 is there, 1 is there, negative is there, negative is there, a term is there, here is also a term. So we have to equate tan x tan y as tan 17, and tan x is tan 45 and tan y is tan 17. You got that? कंपेयर करो, कंपेयर। सो हम क्या कह सकते हैं, 1 की जगह पर, चलो ठीक है, पहले 1 लिख दिया, नेगेटिव कर दिया, मैं इसको इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मुझे x प्लस वाई पता चल जाएगा और उससे मैं पता लगा दूंगा भाई ये किसके इक्वल है, पता चल जाएगा, उसी से पता चल जाएगा। आप समझ गए होंगे, हाँ भी x प्लस वाई 62 के इक्वल आएगा, ठीक है, 45 प्लस 17 62 के इक्वल आएगा। बट नीचे वाले को कैसे हम इस फॉर्म में लिखें, 1 माइनस, देखो tan x tan 45 है, tan x क्या है, tan 45 है, मतलब मैं यहाँ पे tan 45 क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि tan 45 क्या होता है, 1, सो 1 माइनस 1 इंटू tan 17 भी तो 1 माइनस tan 17 ही होगा। यू गॉट दैट, यू गॉट दैट, 1 माइनस tan 17, 1 माइनस tan 17, इंटू में 1 भी तो है यहाँ पे, यहाँ इंटू में 1 छुपा हुआ है, उसको हमें बाहर निकालना है, और यहाँ इंटू ये प्लस में 1 दिख रहा है, इसको हमें बाहर निकालना है tan की दुनिया में, ठीक है, समझ गए। बस अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, tan x प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपका tan 62, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगर ये दे रखा है एक जनरल मेथड, अगर, क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पे होगा, बट अगर जनरल अगर आपको सीखना है ताकि आप सीधा देख के आंसर लगा दो, तो आपको क्या करना है, बस देखो इसका प्रूफ करते हैं। देखो इसको भी हम कॉस से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से दोनों साइड्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं 1 की जगह tan 45 पुट कर दूंगा, तो देखो tan 45 प्लस tan थीटा upon 1 minus tan 45, because tan 45 is 1 multiplied 1 with anything, you get the same thing, so tan theta, tan 45 into tan theta ही होगा, tan 45 plus tan theta 1 plus tan theta, ठीक है, 1 की जगह tan 45 लिख दिया मैंने, और यहाँ भी 1 की जगह इंटू में जो था उसकी जगह भी tan 45 लिख दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, tan 45 plus theta। डू यू नोटिस दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मतलब जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, यू इमीडिएटली यू हैव टू इमीडिएटली प्लस 17 और प्लस एनी थीटा जो भी गिवन है विद 45 डिग्री, ठीक है, विद 45 डिग्री प्लस कर दो, बस उसमें ऐड कर दो tan थीटा प्लस 45 कर दो, 17 प्लस 45 62, ठीक है। इसका एक और वेरिएशन समझ लो, हो सकता है पेपर में ये ना पूछ के ये न्यूमिनेटर में होता और ये डिनोमिनेटर में होता, मतलब कुछ ऐसा होता, नेगेटिव लगा होता, और यहाँ भी ऐसे, तब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, तो हम थीटा माइनस नहीं, हम 45 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है, 45 माइनस थीटा, क्योंकि ऐसे इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन होगा क्या, यहाँ प्लस लग जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, सो tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y क्या होता है, tan x माइनस वाई, सो tan 45 माइनस थीटा। जब ऊपर प्लस होगा तो क्या करेंगे, थीटा प्लस 45, नीचे प्लस होगा तो क्या करेंगे, 45 माइनस थीटा, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। और अगर बाय चांस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए वो एक टर्म ये दे दे,
प्लस इसका रेसिप्रोकल दे दे तो सीधा मार्क कर देना क्या 90 डिग्री, ठीक है, सीधा मार्क कर देना क्या 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसको आप प्लस करोगे, थीटा प्लस 45 प्लस 45 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट कैंसल्ड, 45 प्लस 45 90। सो ऐसी टर्म और इसका रेसिप्रोकल क्या देगा आपको 90 डिग्री। मतलब मैं अगर फिर से आपको समझाऊँ, एक मिनट इसको मोड़ देते हैं, पीछे भी जगह है। हाँ जी, मतलब अगर ऐसा हो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ऐसा हो, आपसे पूछा हो कि थीटा बताओ क्या है, थीटा तो थीटा मतलब इसका वैल्यू बताओ क्या है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है डिग्रीज में, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ डिग्रीज में क्या आएगी। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, टेन, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, सो टेन 45 माइनस थीटा इंटू टेन 45 प्लस थीटा, ठीक है, टेन 45 माइनस थीटा टेन 45 प्लस थीटा। तो ये एंगल्स का सम कितना हो गया 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा इनका सम, एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एंगल्स का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो एंगल आएगा, तो यहाँ से जो एंगल आएगा उसका सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। मतलब अगर इसमें अगर आपको मान लो टेन मतलब अगर हम 17 डिग्री वाले क्वेश्चन को सोचें तो इसमें क्या आई थी वैल्यू टेन 62, सो दूसरे वाले में क्या आ जाएगी वैल्यू टेन 90 माइनस 62, दैट इज कितनी हो जाएगी ये, 10 में 2 गए 8, 8 में 6 गए 2, ठीक है, ये इतनी हो जाएगी टेन 28, ठीक है, टेन 28, ठीक है, इसकी वैल्यू टेन 28 हो जाएगी जब 17 है यहाँ पे ऑब्वियसली, इसकी वैल्यू टेन 28, इसकी वैल्यू टेन 62, ठीक है। समझ गए कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन को। देखो मैंने जो क्वेश्चन कराया और जो मेरे पेपर में भी आया और मोस्टली 100% बच्चों के पेपर में वही आएगा, 100% बच्चों के पेपर में वही आएगा ये वाला क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है, या ये या इसका रेसिप्रोकल। तो उस वो भी एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में तो इतना ही पूछेंगे। सो ऐसे में तो यार आराम से हो जाएगा, बट हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन डेवलप करना है। हम क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन डेवलप करेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हमें आता हो, ठीक है। समझ गए कैसे कैसे मैंने किया। मतलब अगर आपको ये चीज़ दे रखी है आप इसका रेसिप्रोकल निकाल सकते हो बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय 90 डिग्री, बिकॉज जो इसकी वैल्यू होगी और जो दूसरे वाले की वैल्यू होगी उनके जो थीटा होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। कैसे हुए वो मैंने आपको सारा प्रूफ समझा दिया, एक और बार रिवाइंड करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू निकालनी कैसे है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं सिर्फ सॉल्यूशन कराता ना तो बस इतना ही समझ में आता, ना आपको रेसिप्रोकल का भी शायद ना समझ में आता, कुछ ही बच्चों को समझ में आता। लेकिन अब मैंने आपको पूरी इन डेप्थ क्वेश्चन समझा दिया कि कहाँ कहाँ से ये क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक एमसीक्यू ही है, देखते हैं इसको, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि जिस तरीके से दे रखा है, जिस तरीके से दे रखा है बस उससे कंफ्यूजिंग है ये, इसका कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इफ a इक्वल्स पाई बाई 8, a इक्वल्स पाई बाई 8, फाइंड cos a प्लस cos 7a। दिस इज ऑल्सो MCQ केम इनटू माय एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, a है इसका 2, b है 0, c है 0.5 और हाफ, ठीक है, जो भी कहना है, और d है आपका 1, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर देखो तो, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। कैसे इजी है देखते हैं। cos a प्लस cos 7a, सीधा सॉल्व करो ना यार इसको, क्यों ये सब घबरा रहे हो कि यहाँ पे पाई बाई 8 करना पड़ेगा, यहाँ 7 पाई बाई 8 करना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधा पहले इसको तो सॉल्व करो, cos a प्लस cos 7a, क्या सबका सब फॉर्मूला लगेगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, बिल्कुल लगेगा। cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस 7a बाय 2
इंटू कॉस, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, कॉस ए माइनस 7a/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 कॉस, ये क्या हो जाएगा 8a/2 4a, ठीक है, 8a/2 4a, और कॉस ये क्या हो जाएगा 7a माइनस ए, सॉरी a माइनस 7a, तो क्या हो जाएगा ये -6a/2 -3a, कॉस के अंदर माइनस कुछ नहीं फर्क पड़ता क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos 3a हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos 3a हो जाएगा। बस हमें क्या करना है 4a और 3a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, कि a दे रखा है 4a और 3a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो शायद से हमें कुछ मिल जाएगा, ठीक है। a दे रखा है हमें π/8, तो 4a कितना होगा, 4a होगा 4π/8, 4π/8 क्या होता है 4 1 4 4 2 8 π/2, अरे वाह यही π/2 आ गया। π/2 क्या होता है 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, आंसर 0, एक टर्म 0, सारे मल्टीप्लिकेशन में सब 0, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन था ये, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एट फर्स्ट कि कैसे करेगा ये π/8 है, कुछ तो करना पड़ेगा। जब पेपर में आते हैं ना ऐसी चीज़ें तो होता है, मेरे साथ भी हुआ था, गलत नहीं हुआ मैंने सही करा है इसका आंसर, बट काफ़ी सोचने के बाद, ठीक है, लास्ट में जाके मैंने करा तो बड़ा इजी सा लगा मुझे, मैं इसमें क्या इतना दिमाग लगा रहा हूँ मैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये भी एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन द आर डी शर्मा बुक। सो करते हैं इसको, एंड दिस क्वेश्चन केम इनटू माय एग्जामिनेशन, ठीक है। सो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है 1 प्लस कॉस π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 3π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 5π/8, 1 प्लस कॉस 5π/8 इंटू 1 प्लस कॉस 7π/8 इज इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस इज एग्जाम्पलर आर डी शर्मा क्वेश्चन, ठीक है, आर डी शर्मा में भी है ये, एग्जाम्पलर में भी है, तो वेरी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, और 5 मार्क का है, ठीक है। 1 प्लस कॉस π/8, 1 प्लस कॉस 3π/8, 5π/8 एंड 7π/8। एक काम करते हैं, क्या काम करें कि हम एक काम ये करते हैं कि हमने पाई की जो वैल्यूज़ है ना ये पुट करके ना इनको डिग्री में ले आते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्यों कह रहा हूँ पहले करो फिर समझ में आएगा, ठीक है। सो π/8 जब भी ऐसा लगेगा ना पेपर में कि मुश्किल लग रही है वैल्यूज़, थोड़ी सी 5 जा रही है, 5π/8, 6π/8 या 7π/4, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसको सॉल्व कर लो डिग्री से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो π/8 अब क्या हो जाएगा 180/8, ये क्या हो जाएगा 180/8 को अगर आप देखो ध्यान से, सो ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा, ठीक है, 2 2 ज़ा 245 ज़ा, तो ये हो जाएगा कहीं 45/2 डिग्री पे जाएगा, ठीक है, 45/2 डिग्री पे कहीं ना कहीं जाएगा, ठीक है। या एक काम करो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट रुको, इसको डिग्री में चेंज नहीं करते हैं, बिना डिग्री में चेंज करे हो जाएगा, डिग्री में चेंज करेंगे तो उल्टा दिक्कत आएगी क्योंकि फिर पॉइंट्स में चला जाएगा ना। तो चलो इसको दूसरी तरीके से करते हैं, एक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर हम क्वेश्चन में देखें ना, तो ध्यान से अगर हम देखें π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8 सब ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, होगा क्या होगा, इस टर्म से इस टर्म से इस टर्म से और इस टर्म से फोकस, इस पर और इस पर, इस पर और इस पर फोकस करो। क्या दिख रहा है कि π/8 और 7π/8 जब ऐड करेंगे, π/8 प्लस 7π/8 जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पाई आएगा ना, 8 कॉमन लेंगे, ऊपर भी 8 पाई आ जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल, पाई क्या होता है 180 डिग्री, मतलब ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही 3π/8 प्लस 5π/8 करेंगे, 8π/8 आएगा, पाई आ जाएगा वहाँ पर, तो वो भी क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, दोनों को साथ ले आओ, ठीक है, दोनों को क्या करो साथ ले आओ, ऐसी टर्म्स को साथ में ले आओ, ठीक है, कुछ तो होगा वहाँ से।
ठीक है, इन दो को साथ ले, इन दो को साथ ले, ठीक है, पाई बाई 8 7 पाई बाई 8। चलो देखते हैं अब क्या करना है। नाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कॉस 2 थीटा? क्या आपको कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला याद है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और tan में आएगा पर tan में हमें चाहिए, tan में भी है और हमें चाहिए नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो हमें ये सेकंड वाले की ज़रूरत पड़ेगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? ध्यान से देखो, कॉस 2 थीटा, देखो कॉस 2 थीटा मैं यहाँ लिखता हूँ, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक तो ऐसे आ जाएगा और दूसरा कैसे आएगा, हम कॉस वाले को ले तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा प्लस 1, है ना, कॉस 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, सही है। अब देखते हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले ना आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत बारी यूज़ होते हैं, ठीक है, ये बहुत बारी यूज़ होते हैं, ये इतना यूज़ नहीं होगा, ये ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, ये याद रखना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू, अब इसको बदल देते हैं, 7 पाई बाई 8 को हम बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, पाई माइनस पाई बाई 8 करेंगे, पाई माइनस 7 पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, इसको ऐसे रहने दो, और इसको क्या कर दो, 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, तभी आ जाएगा वो, है ना, आ जाएगा फिर वो। चलो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू, अब देखो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, और वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब अगर हम इसको आगे देखें तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ तक क्लियर है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और इंटू में साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब देखो, अब इसका नीचे वाले का यूज़ आ जाएगा, ये इस वाले का, ठीक है, इस वाले का कैसे यूज़ आएगा, ये समझ में आ गया, ये कैसे लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है उससे मैंने लिख दिया ये, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स थीटा, कॉस 2 टाइम्स थीटा डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 भी आएगा वहाँ पे, ठीक है, इनटू सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ये 2 1 जा, ये 2 4 था, ये 2 1 जा, ये 2 4 जा, ठीक है, 1 माइनस कॉस पाई बाई 4
1 माइनस कॉस पाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 by 2. Do you know the value of cos pi by 4? Yes. Do you know the value of cos 3 pi by 4? 3 pi by 4 क्या होता है 270 डिग्री. Yes, we know that. ठीक है. So cos pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? क्या होती है रूट 1 बाय रूट 2. ठीक है. 1 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस, अब ये माइनस में होती है. ठीक है. तो 1 प्लस हो जाएगा. 1 प्लस 1 बाय रूट 2 की माइनस 1 बाय रूट 2 होती है. माइनस प्लस लगा हुआ है. सो प्लस हो जाएगा. 1 प्लस 1 बाय रूट 2 डिवाइड बाय 2. ये क्या आ गया 1 माइनस 1 बाय रूट 2. ये आ गया 1 प्लस 1 बाय रूट 2. 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2. तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 8 ही होता है. तो ये आ गया 1 बाय 8. ठीक है. 2 माइनस 1 दैट इज़ द थिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर डिस्कशन टुडे. आई होप आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा और आपको क्वेश्चंस के लेवल बड़े अच्छे लगे होंगे. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.